Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, after the result of Union Bank of India and even after the result of IBPS, we observe one unique feature that there are many candidates. Those are selected for Union Bank of India LBO as well as for IBPS PO, IBPS clerk, and many of them are already working with RRB or selected for RRB and yet to join RRB. That means there is a good number of duplication. The candidates, those are working in RRB or selected in RRB, most of them may likely to move to IBPS PO or Union Bank LBO. In such circumstances, we can feel that these people will vacate the vacancies in RRB. So if they leave RRB or if they don't join RRB, that means these vacancies may either be available to reserve list candidates if bank so decides, or they may be added in new year selection. So this is a good news for both set of candidates. Those are waiting their turn in reserve list or those are looking for current year vacancies. So we can only estimate the things. The real information about vacancies will only emerge when banks will decide about these vacancies. And in most of the cases, such review may happen after the amalgamation or merger, wherever it is happened, and in the states where there is already one bank, they might be doing the exercise right away. But as there is a lot of anxiety about number of vacancies, so we are trying to estimate through various signals that is emerging. So one of the signal is what is the level of multiple selection, because in most cases a person who is already working in RRB or selected for RRB may prefer to go for IBPS PO, IBPS clerk or Union Bank LBO, and some of might have been selected for NICL assistant also. The lot of results are now comes after the joining of RRB. So the case is wide open because many of you are worried about the number of vacancies that may emerge during the year, and some of you are in reserve list. Those are awaiting their turn in reserve list. Although it is very difficult to predict how many candidates will be cleared from reserve list, this is also difficult how many vacancies will come in the coming year. But this is a good news. This is a good signal for the candidates, those are looking for current year exam or those are in reserve list. So whatever I could infer or observe from the things that is moving, I thought to share with you. This is not an estimate, or this is not a, you can say, news that I am sharing with you. This is my observation, that is I am sharing with you, because some of you are new to this channel, they are not able to understand why we share whatever information comes our way, because most my communication is through videos, because it is difficult to communicate one to one on individual even comments also. So whatever I infer or whatever I feel, I communicate it through series of videos, and that always helps you to boost your confidence and to work for your फ्यूचर. गॉड ब्लेस यू ऑल. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आरआरबीज में कितनी वैकेंसीज आएंगी, रिजर्व लिस्ट में जो आरआरबी के कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, इसको लेके एक ऑब्जर्वेशन मेरी है जो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ. क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं और जैसे जैसे वो कमेंट करते हैं तो उससे कई इन्फ्लुएंसेस निकलती हैं. अभी हाल ही में जो रिज़ल्ट आया है IBPS PO का, IBPS क्लर्क का 1 अप्रैल को, और उसके बाद अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का रिज़ल्ट आया है और बीच में NICL का भी फाइनल रिज़ल्ट आया था.
तो उसको देखने के बाद मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने आरआरबी ज्वाइन कर लिया है इस साल या अभी वेट कर रहे हैं ज्वाइनिंग की एज ए पीओ और क्लर्क, और उनका सिलेक्शन आईबीपीएस पीओ में हो गया है या यूनियन बैंक एलबीओ में हो गया है या एनआईसीएल में भी हो गया। और उनमें से कई लोग हो सकता है जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विट करेंगे, या जो ज्वाइन करने वाले थे वो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में यदि ऐसा होता है, जिसकी संभावना नज़र आ रही है, क्योंकि जहाँ मल्टीपल सिलेक्शन है तो नेचुरल एक व्यक्ति तो एक ही जॉब के लिए जाएगा ना, और काफ़ी ये चांस होता है कि जो आरआरबीज में होते हैं वो लार्जर बैंक की तरफ मूव करते हैं। तो जिन भी लोगों का आईबीपीएस पीओ हुआ है या यूनियन बैंक में एलबीओ हुआ है तो काफ़ी प्रोबेबिलिटी है दे में मूव टू वो इसकी तरफ मूव करें। तो अगर वो इसकी तरफ मूव करते हैं तो नेचुरल है आरआरबी में वैकेंसी अराइज हो जाएगी, या ज्वाइन नहीं करेंगे तो भी वो वैकेंसी खाली रह जाएगी। अब ये वैकेंसी किसको मिलेगी? ये वैकेंसी दोनों जगह जा सकती है। पहला, जो लोग रिज़र्व लिस्ट में हैं, अगर बैंक चाहे तो रिज़र्व लिस्ट से उन लोगों को लेके अपनी वैकेंसी फिल कर सकती है। और दूसरा ये भी होता है कि मान लो रिज़र्व लिस्ट में वो नहीं लेना चाह रहे तो जो नेक्स्ट ईयर की सिलेक्शन है उस वैकेंसीज़ की कैलकुलेशन करते समय भी उसके साथ वो ऐड कर लेते हैं। तो दोनों तरह के जो कैंडिडेट जो इस साल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी, और जो ऑलरेडी रिज़र्व लिस्ट में है उनके लिए भी ये एक अच्छी खबर मानी जा सकती है क्योंकि अभी जैसे आप बार बार पूछते हैं सर कितनी वैकेंसीज आएंगी, तो अभी तो देखो एस्टिमेशन वैसे तो लग नहीं सकता, मगर कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिनकी चर्चा करना आवश्यक होता है। जो लोग नए हैं उनको हो सकता है कई बार लगता हो कि क्या हम बता रहे हैं, पर ये जो चैनल है इसके ऊपर हम वीडियोस के जरिए जो भी ट्रिगर्स मिलते हैं वो ट्रिगर्स अल्टीमेटली वैकेंसी में कन्वर्ट होते हैं या नहीं होते वो तो टाइम ही बताता है, मगर जो भी ट्रिगर्स होते हैं हम उसको ज़रूर डिस्कस करते हैं ताकि उससे एक हमें कॉन्फिडेंस बनता है, उससे हमारे अंदर एक प्रेरणा आती है कि हमें अपने काम पे जुटे रहना है। तो जहाँ जहाँ भी कोई मुझे एक पॉजिटिव न्यूज़ नज़र आती है मैं अपने चैनल पे शेयर करता हूँ, जिसका मुझे इम्प्लीकेशन लगता है कि हमारे कैंडिडेट्स पे पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, उसको हम वीडियोस के जरिए कवर करते हैं। कई बार आपके इंडिविजुअल क्वेश्चंस होते हैं, रिज़र्व लिस्ट में हूँ मैं, मेरा क्या होगा, या इस साल कितनी वैकेंसीज आएंगी, तो इंडिविजुअल रिप्लाई करना संभव नहीं होता, तो हम वीडियो के जरिए इन बातों को चर्चा करते हैं। तो अभी जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है जब से रिज़ल्ट आया है, अप्रैल के अंदर 1 अप्रैल को रिज़ल्ट आया था और अभी रिसेंटली 2 और रिज़ल्ट आए हैं, तो उसमें मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी मल्टीपल सिलेक्शन है, और मल्टीपल सिलेक्शन है तो नेचुरल है वो जो उसमें से बेस्ट ऑप्शन है उसकी तरफ जाएंगे। तो उसमें काफ़ी चांस होता है कि जो लोग आरआरबी में हैं, क्योंकि आरआरबी सिर्फ एक स्टेट स्पेसिफिक ही होते हैं बैंक, तो उनको काफ़ी लोग उसको छोड़ के जो बड़े बैंकों की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर वैकेंसीज अराइज होने की संभावना बनी रहती है। फिर भी इंडिविजुअल लाइकिंग पे भी डिपेंड करता है, कई लोग आरआरबी में ज़्यादा अपने को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, वो हो सकता है ना छोड़ें, मगर फिर भी अमूमन ऐसा देखने में आता है कि लोग आरआरबी से जो बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको प्रेफर करते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हैं। और एलबीओ में तो स्टेट वाइज ही क्योंकि जॉब है, तो अगर उसको आरआरबी और एलबीओ में चूज़ करना है तो नेचुरल है वो एलबीओ चूज़ करेगा, क्योंकि बड़ा बैंक भी मिल गया और स्टेट प्रोटेक्शन भी मिल गई। तो ये एक मेरे हिसाब से आपके लिए पॉजिटिव ट्रिगर है, खासकर जो रिज़र्व लिस्ट में बैठे हुए कैंडिडेट हैं या जो लोग इस साल की तैयारी करना चाहते हैं आरआरबी की, तो आप आरआरबी की तैयारी जारी रखें, यही मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।